بات چل رہی تھی ہجرت کی. اس طریقے سے پہلی ہجرت ملک کے شاہ ملک حبشہ کی طرف. شاہ حبش نجاشی بادشاہ وہاں کا دیندار تھا، نرم طبیعت کا تھا، تو اس طریقے سے مسلمان وہاں پر چلے گئے. لیکن کافروں نے وہاں پر بھی جا کر آپ ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور کس طریقے سے ان کو ورغلانا چاہا. تو یہ سیرت کا پارٹ پورا ہو گیا. اب آپ حضرات اپنے کوئی مسائل معلوم کرنا ہو تو مسائل معلوم کر لیجئے گا. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام الطاف بھائی. حضرت میرا یہ سوال تھا کہ فرض نماز کے بعد ہم لوگ جو آیت الکرسی پڑھتے نا، یا ڈائریکٹ ایسے پڑھ لے سکتے ہیں، یا ایسا زمین پہ ایسا دایاں ہاتھ رکھ کے سیدھا ہاتھ سینے پہ رکھ کے پڑھنا ہے؟ یا کیا کون سی درود شریف یا دعا؟ آیت الکرسی حضرت. آیت الکرسی بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر ہاتھ کہیں پر رکھے ہوئے، جیسے ہم اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں سلام، اور ایسی پڑھنا. البتہ آپ یا کبھی یوں پڑھ رہے ہیں تو سر ہاتھ پہ ہوگا، اور کسی طریقے سے سر ہاتھ پہ نہیں ہوگا. یا نورو پڑھ رہے ہیں آنکھوں کے لیے تو اس پہ بھی کہیں ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل ایسی پڑھ لیں. آیت الکرسی اسی طریقے سے پڑھ لیں. جی حضرت. جی اور پوچھیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام احمد رضا بھائی. آج میرا کلاس مس ہو گیا. اچھا اچھا. جی کوئی اس لیے میں ویڈیو دیکھ کے کر لوں گا. جی جی لیکن میرا ایک کوائری تھی، مطلب جی پوچھنا جی تھا کہیں. کہ جمعہ میں جب مولانا صاحب خطبہ پڑھاتے ہیں تو میں نے جی جی بہت کوئی کو دیکھا، تھوڑا کنفیوژن ہو گیا تھا کہ بہت کو جیسے کہ ہم لوگ نفل نماز بیٹھ کے نیت باندھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھتے ہیں. اچھا اچھا. تو جی اور یہ سمجھ لیا جائے احمد رضا بھائی کہ ہر وہ سچویشن بیٹھنے کی جس میں غور سے خطبہ سنیں وہ کریں. کوئی خاص طریقہ، خاص مخصوص حیت اور شکل کے ساتھ خطبے ہوتے وقت بیٹھنا کا حکم نہیں آیا. جس طریقے سے چاہیں بیٹھ جائیں، لیکن خطبہ سننا اور توجہ سے سننا ہے، چاہے آواز آ رہی ہو تب بھی، نہ آ رہی ہو تب بھی. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے تحیات میں بیٹھا جاتا ہے سیم ایسے ہی بیٹھنا چاہیے. یہ جی جی مناسب جی نہیں، یہ اپنی طرف سے زیادہ کر دیا گیا. جی یہی تھوڑا کنفیوژن تھی کہ کچھ تو دیکھتا ہوں کہ نارمل بیٹھتے ہیں، کچھ نیت باندھ کے بیٹھتے ہیں، تو آپ تھوڑا نیت کنفیوز نہیں باندھنا کلیئر ہے، کر. بلکہ ادب جی طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بڑے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو تحیات و تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، ایسے ہی بیٹھیں. جی ٹھیک ہے، شکریہ. اور کچھ پوچھنا ہے؟ حضرت میرا اور ایک سوال تھا. جی پوچھے الطاف بھائی، آپ ایک نہیں کئی سوال پوچھے جو آپ کے ہیں. یہ مسجد بہت دور ہے، میرے گھر سے 2 کلومیٹر بہت دور ہے، تو کیا گھر میں ہی نماز پڑھ سکتے کیا بول کے؟ باقی اتنی دور ہے، آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے؟ نہیں ہے حضرت. اچھا، اذان کی آواز آپ کے گھر تک آتی ہے؟ جی آتی ہے حضرت. اچھا دیکھیے، وہ نمازیں جس میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے، جیسے کہ عشاء ہیں اور فجر ہے، اس میں گنجائش ہے کہ آپ گھر میں پڑھ لیں، کیونکہ لیکن پھر بھی اس نماز کا ثواب جو آپ گھر میں بغیر جماعت کے، بغیر مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہ ثواب میں کم درجہ رکھتی ہے. وہ نماز جو جماعت کے ساتھ اور مسجد میں جا کے پڑھی جائے وہ 27 گنا 27 درجہ زیادہ ثواب والی ہوتی ہے. لہذا آپ کو پریشانی ہے، جیسے راستے کی دوری ہے یا راستہ خطرے والا ہے، تو ایسی صورت میں گھر پہ پڑھنے کی بھی اجازت ہے. جی السلام علیکم. جی عمر بھائی وعلیکم السلام. جی تو فرض نماز کے بعد اور جو باقی سنت اور نوافل ہے وہ
इमीडिएटली पढ़ना चाहिए या फिर उसके बीच में मतलब गैप भी चलेगा, या फिर जो भी हदीसों में आता है कि फर्ज नमाज के बाद आपको ये पढ़ना है ये पढ़ना है, ये फर्ज नमाज और बाकी नमाजों के बाद, या फिर सिर्फ फर्ज नमाज के बाद ये सब पढ़ देखिए के जिन फिर? जिन अहादीस में फर्ज नमाज के बाद, जैसे आयतुल कुर्सी फर्ज नमाज के बाद अगर पढ़ा जाए तो उसमें फर्ज नमाज ही होगा। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर में और मगरिब की फर्ज पढ़ने के बाद 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ लिया जाए और इस पे अपना मामूल बना लिया जाए तो अल्लाह ताला उसको दोज़ख से महफूज फरमाएगा। तो ये फर्ज नमाज के फौरन बाद ही, ना तो फर्ज से पहले की सुन्नतों के बाद है, ना सुन्नतों के बाद की सुन्नतों के बाद है, सिर्फ फर्जों के। अलबत्ता इसी तरीके से कि दुआ, कबूलियत दुआ का वक्त इनमें से एक वक्त फर्ज नमाज के फौरन बाद भी दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, इसलिए फर्ज नमाज के बाद मुख्तसर सी दुआ मांग लेनी चाहिए। और मुकम्मल आपको बड़ी दुआ मांगनी है, लंबी दुआ मांगनी है, तो वो तमाम सुन्नतों नफलों के बाद मांगनी चाहिए। जी अमर भाई समझ में आ गया, मुतमईन हो गया? जी जी अच्छा, जी। और कोई पूछे? और एक जो है वो जी मतलब कहे नमाज के बाद जी फर्ज नमाज के बाद जो है जी कुछ इमाम इमाम वगैरह जो है हाथ सर पे रख के जो है दुआ पढ़ते हैं, वो जी 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 बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु जी जी जी। तो दरअसल अर, जी जी कहें कहें। जी अर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अज़हिब अनिल हम्म वल हुज़्न, यही है ना पूरी? जी 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 अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका। जी 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 नहीं, तो अल्लाहुम्मा अज़हिब अनिल हम्म वल हुज़्न, ये उसी का हाँ, पार्ट अल्लाहुम्मा आगे। ज़हिब अन्निल हज़्न वल हुज़्न भी है, समझ में आ गया। जी तो जी जी। इसमें ये ये कुछ, जी हाँ, कुछ कुछ को पढ़ते हुए देखा है हमने, कुछ इमामों को, कुछ नहीं जी जी पढ़ते, बाकी कुछ मुक्तदी पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते। तो ऐसा ये सुन्नत मतलब सुन्नत मौकिदा टाइप है या गैर मौकिदा, पढ़े तो भी चलेगा हाँ, ये नहीं बहुत पढ़े अच्छा तो भी सवाल नमाज? किया उमर भाई ने। देखिए मैं भी एक इमाम हूं, जी लेकिन ये जो या कवियो सर पे हाथ रख के जो पढ़ा जाता है ना, जी ये जो है तजर्बातुस सालिहीन यानी नेक लोगों के मुजर्रबात अमलों में से एक अमल है। लेकिन ओके। हाथ को इस तरीके पाबंदी से रखना कि नए नए जो नमाज पढ़ने आता वो भी हाथ रख लेता है मजबूरी में, क्योंकि सब रखे हुए वो भी रख ले रहा है, क्योंकि उसको नहीं हाँ मालूम क्यों वही। रख रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, जी क्योंकि वो इमाम जी। साहब को देख रहा है कि इमाम साहब रखे हुए लिहाजा मुझे भी रखना चाहिए। हाँ तो ये जो है ये इमाम साहब की कमी है कि मुस्तहब अमल पर इतनी पाबंदी से अमल न करे कि लोग उसके फर्द सही। या कंपलसरी होने का यकीन कर लें, या फिर ये कि उसको ओके। बताते रहें वक्तन फवक्तन। सही। तो मैं समझता हूँ उमर भाई आपका इसी से मुताल्लिक कोई सवाल था ना? जी जी ऐसे ही था। हाँ, और बिल्कुल। इसी तरीके से दुआ के बारे में भी हम लोग जो है जी जो दुआ नमाज के बाद दुआ करते, अपनी दुआ जिसका जी मन चाहे मांगे और जिसका जी जाया चाहे। लेकिन ये होता ही है कि कोई बंदा अगर सलाम के फौरन बाद जाए तो पूरी मस्जिद इतनी गौर से देखती है बंदे को कि वो बेचारा जी जी नर्वस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये इसमें हमारे इमाम साहब कभी कभी ऐसे ही खड़े हो जाएं ताकि ये मैसेज लोगों को पहुंचे कि नमाज के बाद दुआ मांगना कंपलसरी वाजिब फर्ज नहीं। सही बात, सही बात। ये जो है दरअसल हमारी तरफ से है। देखिए ये जो है देखा देखी अब अवाम जो है पूछती नहीं है, बल्कि देख जी कर अमल करना चाहती है। जो आपने एक तो शायद आपने पूछा था या किसी और ने पूछा था, वो नमाज जनाजा में गर्दन ऊपर आसमान की तरफ उठाने का मसला। नहीं नहीं पता नहीं, अच्छा, मैंने तो असल नहीं में पूछा। क्या है, नमाज जनाजा होती है उसमें 4 तकबीर होती है। जैसे इमाम साहब अल्लाह अकबर जी कहते तो लोग गर्दन ऊंची उठा के फिर अल्लाह अकबर कहते। ये भी देखा देखी आया, हालांकि गर्दन को हरकत देना कहीं भी नहीं, बस सिर्फ ये देखा हो किसी का नॉर्मली दर्द कर रही होगी तो उसने इस तरह गर्दन करी होगी तो सबने देखा देखी उसके सामने कर ली। और उसका तो हम नजारा देखते हैं ईद की नमाज में, हम अपने से आगे सही। खड़े हुए मुल्ला जी को देख रहे हैं, हमने सोचा कि ये दीन के बारे में ज्यादा जानते होंगे, लिहाजा वो कभी हाथ छोड़ रहे हैं कभी बांध रहे हैं, हम भी उनका देखा देखी कर रहे हैं, लेकिन वो भी वो किसी ना किसी का सही देखा देखी कर रहे होते हैं।
सही बात। हालांकि साल में 2 मरतबा पढ़ते हैं, अगर उसको समझ लिया जाए ना तो बहुत आसान है, लेकिन सही। समझना चाहते ही नहीं है। जी 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 जी, खैर बिल्कुल। आप और पूछें कुछ। जज़ाकल्लाह। और तो वही मतलब अभी और एक चीज कि जब मगरिब वगैरह के बाद हमारे तो मस्जिद में जो जमात जो बैठती है मशवरे के लिए वगैरह, जी जी या फिर जो भी गश्त गश्त का अमल वगैरह जो भी होता है जी जी। तो मगरिब के बाद ही होता है। तो हम्म। मगरिब के बाद अगर हमने कुछ मामूलात के तौर पे अगर कुछ पढ़ने का वज़ाइफ वगैरह भी रखे तो फिर वो बुलाते हैं कि यार चलो आओ बैठो चलो, तो फिर वो हो नहीं पाता, फिर बाद में हमको जी कहीं जाना जी। होता है तो फिर वो वो मिस ही हो जाता है पूरा और क्या, इतना जनरली। वक्त नहीं होता है ना वहां पर, जो वक्त हाँ जो माहौल होता है कर लिया जाता है। जी तो जी ऐसी तो सूरत में अब उनसे ये कहा जाए तो वो पता नहीं नहीं मुफ्त के, मानेंगे वो तो। हाँ मुफ्त के फतवे भी दे देते हैं, अरे भाई इज्तिमाई काम हाँ है, इनफिरादी काम से हाँ ज्यादा इज्तिमाई अच्छा है। काम है इनफरादी, जी जी जी। जी ऐसा बोलते हैं। हालांकि ये कोई बात नहीं भाई, देखिए आप दीन का काम कर रहे हैं, मैं भी दीनी का काम कर रहा हूँ, मैं कुछ जी मामूलात पूरे कर रहा बिल्कुल। हूँ, तो ये भी दीन है। जी 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 वो देख रहे होते हैं वहां बैठ के वही कर 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 हाँ यार हाँ, आजा वो आजा जल्दी आप पे निगाहें उनकी वो बहुत होती हैं, बजाय जी इसके कि जो बंदे जा रहे होते हैं उनको रोकने के बजाय आपको देख रहे होते हैं, ये आप उठेंगे, ये आप जी उठेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल।